Good evening, I am Ayush here to represent the Sania English Primary High School. I am studying in 9th standard and my model name is wastewater treatment plant. So let's begin. Whatever the waste which is getting from the industrial areas and from the household, that is stored in this container, and that waste is going to be lifted from here to the purification station. The purification station is made up of stones, gravel, charcoal, sand and cotton. This we have contained in one container and in another container. Whatever the waste which is getting here in the purification station, that afterwards we will get the purified water that we can use for various purposes like gardening and industrial purposes. Thank you. And this is a primary level treatment. Thank you. So, good evening sir, my name is Om Anil Tikande. I am studying in 9th standard. I am here to represent Sania English Primary and High School. My model name is Geometric Park. So geometry is the branch of mathematics that deals with shapes, angles, dimensions and sizes of varieties of things we see. So Geometric Park model is the way to explain you geometric concepts through interactive models and games. So first we have a parts of a circle. So this is a center, this is radius, this is diameter, this is sector, this is secant, arc, chord, segment and in last we have a tangent. Then we have a types of angle. So first we have acute angle which is less than 90 degree. Then we have right angle which is exact 90 degree. Then we have obtuse angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree. Then we have a straight angle which is exact 180 degree. Then we have reflex angle which is greater than 180 degree. And in last we have full rotation which is exact 360 degree. Then we have a types of a triangle. There is acute angle triangle which all three angles measure is less than 90 degree. Then we have right angle triangle which one angle measure is 90 degree. Then we have obtuse angle which one angle measure is more than 90 degree. Then we have isosceles triangle which has two equal sides. Then we have equilateral triangle which has all equal sides. Then we have scalene triangle which has no equal sides. After that we have points and lines. So this is a point, it is a particular spot. Then we have a line, then ray, line segment, parallel lines, perpendicular lines and intersecting lines. Then we have a types of quadrilateral. So first is square, rhombus, rectangle, parallelogram and in last we have trapezium. Then we have a set operation. This is union set and this is intersection set. This is A union B and this is A intersection B. Thank you for listening. Thank you sir. Now we will see solar system. So every substance in a solar system revolves around the sun. Sun is a massive hot gas that gives us heat and light. Every planet in a solar system revolves around the sun. There are total of 8 planets which orbits around the sun. So first is Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Jupiter, Neptune and Uranus. Then first of all we will have sun. Sun is a star which has its own light and makes up 99.8% of the solar system. Then we have Mercury. Mercury's years last 1.5 days. Then we have Venus. Venus spins backward. Nobody knows why. Then we have Earth. Earth is known for the harbor life. Then we have Mars. Mars has 2 polar caps. Then we have Saturn. Saturn has its 57 moons. Then we have Jupiter. Jupiter has a storm which can swallow Earth twice. Then we have a Uranus. Uranus was the first planet to be discovered by the telescope. And in last we have a Neptune. Neptune is known as the coldest planet of the solar system. This was all about our solar system. Thank you. Good evening sir, my name is Janvi. I study in grade 4 in Sania English Primary High School. Here is seasonal tree. This is autumn. This is spring. This is summer. And this is winter. This is a seasonal tree. Thank you. औरंगाबाद में महाएक्सपो का सेकंड लास्ट डे है और हमने देखा है कि सानिया इंग्लिश स्कूल यहाँ पे एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। कौन सी चीज़ प्रेजेंट किया है यहाँ पे सानिया स्कूल ने और क्या आपका मैसेज जा रहा है इस समाज जी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना करूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टॉल।
सानिया इंग्लिश प्राइमरी एंड हाई स्कूल ने आज पार्टिसिपेट किया है एजुकेशनल एक्सपो में। हमारा एम यही था कि हम यहाँ पर बच्चों को इंकरेज कर सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना कर लाए। उन्होंने यहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पर ज्योमेट्री पार्क बना है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सैटेलाइट प्रोजेक्ट बनाए इन्होंने, फेस्टिवल ट्री बनाया इन्होंने। ये पूरी टीम वर्क है। एक्चुअली ये हमारे एडमिन जो है सबा मैम ने टीचरों के साथ कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया और बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सिक्यूट किया। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम। इट्स नॉट अ सिंगल पर्सनस वर्क, इट्स ए टीम वर्क। सो इट वाज अ ब्रिलियंट वर्क एंड आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राउड जो आ रहा है, जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है उससे। हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो टीम ने वर्क किया है, ये आउटस्टैंडिंग मेहनत की है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम ऑल। अभी जो हमारे दर्शक आपकी न्यूज़ देख रहे होंगे और बहुत सारे चाह रहे होंगे जब बच्चों ने इतना अच्छा प्रेजेंट किया तो हमारे बच्चों को भी आप इसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो क्या रूल रेगुलेशन है और कब से एडमिशन शुरू हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हम लोग डोनेशंस नहीं लेते बिल्कुल भी। हमारा एम है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। हमारा एम कोई बिज़नेस करना नहीं है या प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारा एम है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो आए वो एजुकेटेड हो। क्वालिटी एजुकेशन की कमी है औरंगाबाद में। इंग्लिश स्कूल है तो इंग्लिश ही टॉकिंग होती है, इंग्लिश पे एम्फसाइज करिए हम लोगों ने, और टीचर सब इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं। हमारे एकेडमिक इंचार्ज बहुत इसको स्ट्रिक्टली ले रहे हैं, पूरा स्टाफ स्ट्रिक्टली ले रहा है, बच्चे पूरे मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाह रहे हैं तो आप हमारे स्कूल में ज़रूर आइए, क्योंकि हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है। फ़ीस कोई हाई नहीं है हमारी। एजुकेशन लेवल जो हम दे रहे हैं कैम्ब्रिज और स्टेपिंग का दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो फीसेस है बहुत ही नॉमिनल फीसेस है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसका बता देंगे। मतलब आपके स्कूल में एक आम इंसान भी अपने बच्चे का एडमिशन करा सकता है जिसकी ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ बच्चे? जी जी बिल्कुल, हमारा मकसद ही वही है कि एक आम इंसान का बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़े। क्योंकि तो बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चा टैलेंटेड होता है लेकिन फ़ीस अफोर्ड नहीं करने की वजह से वो पीछे रह जाता है। तो हमारा मकसद है कि ऐसे बच्चों को आगे लाए और हम ऐसे बच्चों को इंकरेज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनको डिस्काउंट भी कर देते कभी फीस में, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ फीस पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद है क्वालिटी एजुकेशन देना और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना। हमारा स्कूल नर्सरी से लेकर 10th तक। जी हाँ। मतलब एक बार बच्चे को एडमिशन नर्सरी में दिला दिए जी, तो आपके स्कूल से निकल के डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे? एग्जैक्टली। और हमारी कोशिश जारी कि 12th तक भी हो जाए, तो शायद आने वाले सालों में 12th तक भी हम कर लेंगे जूनियर कॉलेज। आपके स्कूल में अगर कोई कांटेक्ट कर सके, मतलब पहले हम बात कर ले फ़ोन के ऊपर, तो कुछ कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं? हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर, मुझे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा 9324289559 है। आपका नाम और आपकी पोस्ट बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल क़वी मोइज़ है और मेरी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इस स्कूल में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सबनास, द प्रिंसिपल ऑफ सानिया इंग्लिश स्कूल। आज हमने एजुकेशनल एक्सपो 2024-25 में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट, ज्योमेट्रिक पार्क, सोलार सिस्टम एंड सीजनल ट्री, ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं। वी हैव लाइव प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, द वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन plant, and then we have lots of charts here. You have to look here, sir, this side. We have so many parts. There is a structure of heart, measuring time, lots of charts here about Hindi, Marathi, science, maths, English, each and everything. हम लोग ने, हमारी कोशिश यही थी कि कोई सब्जेक्ट ना छूटे। हमारा मकसद यही है कि बच्चों को हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाए। इसमें मेरा साथ हमारी जितने भी क्लास टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, इवन वो एडमिन हो, एडमिन में रेहान सर है, एंड देन हमारे जितने भी टीचर्स हैं नर्सरी से लेकर 10th तक, वो सब कोऑपरेटिव हैं। और हमारे टीचर्स का यही मकसद है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को दें एंड उन्हें इनक्रेज करें। स्टेज करेज के लिए, बिकॉज अगर स्टेज करेज नहीं होगा, उनमें
इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। स्टेज करेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं यही चाहूँगी कि अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हो, आपके बच्चे को एडमिशन देते हो, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेकर हमारे स्कूल से 10th पास आउट करके निकले। थैंक यू।